Assalamu alaikum and welcome to all of my students of Biochemistry 2 Semester 2 course code SHS 109. My name is Dr. Hamda Saqib and obviously I'll be teaching you biochemistry. Biochemistry is a bit technical subject, but it's very easy to remember once you understand it. And there will be some high yield points that I will tell you when I'll be going on with the lecture. For example, I'll tell you that this particular slide or this particular text is very important in terms of exam point of view, or something is important, for example, in Viva point of view. So as the lecture will continue, I will be telling you the high yield points, and I will be trying my level best to make the understanding of this particular subject very easy for you. Obviously, the student to teacher interaction in classroom is, it's not the what we are doing is, it is not an alternative for that, right? But I'll be trying my level best to do this over here. Since I've taught the previous semester 4 of behavioral sciences, the students said that YouTube was a better medium to give lectures rather than Zoom, because on Zoom there's a lot of disturbances of, number one, internet connections, number two, most students are not able to catch up on time, and number three, most of the students do misbehavior during that. So it's very easy for you and me to have this medium as a platform to discuss this lecture, and obviously I am available on emails regarding any queries that you will have. So we'll start the lecture, which is सेल. आप लोगों ने ये सेल के बारे में एफएससी में, मैट्रिक में इतनी दफ़ा पढ़ा है, तो आज हमने वही चीज़ें दोबारा पढ़नी है. तो इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, वही बातें रिपीट होंगी. थोड़ी अगर एक्स्ट्रा बात होगी तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बेटर. So we'll be discussing what is biochemistry, the ultrastructure of cell, the prokaryotic cell, organization of cell, nucleus and its importance, structural hierarchy in the molecular organization of cells, mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, peroxisomes, biomedical importance of lysosomes, ribosome and its function, cytoplasm, chloroplast, cytoskeleton, and comparison between prokaryotes and eukaryotes. It will be the lecture outline of today's lecture. So what is biochemistry? The science that is concerned with the structures, interactions and transformations of biological molecules. Chemistry जो आप पढ़ोगे biology की, उसको biochemistry कहते हैं सादा जुबान में. So it's the chemistry of life. Biochemistry can be subdivided into three principal areas, which is the structural chemistry, number one, in which you study the structures, number two, in which you study the metabolism, and number three, where you study the chemistry of processes and substances that store and transmit the biological information, which is the molecular genetics. So applications, the findings of biochemistry are applied primarily in medicine. Obviously, we're the students of medicine right now. So biochemists investigate the causes and cures of disease. That is how we study what the problem with the patient is, what is known as the diagnosis, and how we're going to treat it. And even in pharmacological interventions, drugs की भी प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको स्टडी करने पड़ते हैं, उनके इंटरेक्शंस आपको देखने पड़ते हैं. तो जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. इन न्यूट्रिशन द स्टडी हाउ टू मेंटेन हेल्थ एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. एंड इन एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट इन्वेस्टिगेट सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स एंड ट्राई टू डिस्कवर वेज टू इम्प्रूव क्रॉप कल्टिवेशन, क्रॉप स्टोरेज एंड पेस्ट कंट्रोल. Ultrastructure of cell. It is the nanostructure of a biological specimen such as a cell, tissue or organ at scales smaller that can be viewed with light microscopy. It is viewed with ultra microscopy or electron microscopy. Such cellular structures such as organelles, which allow the cell to function properly within its specified environment, can be examined at a ultrastructure level. तो सीधी कहने की बात है कि एक सेल को, टिश्यू को, ऑर्गेनेली को आप लाइट माइक्रोस्कोपी पे उतने अच्छे तरीके से देख तो सकते हो, लेकिन बेटर तरीके से आप उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देख सकते हो. और ऑर्गेनेलीज को स्टडी करने के लिए भी आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पे जाके उनको देखना पड़ेगा. तो द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द टिश्यू वेयर इट अकर्स. Every cell has some general features which are common to all cells irrespective of the tissue of its origin. For example, आपके जो कार्डियक मसल का सेल होगा वो आपके स्टमक के मसल के
सेल से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्टमक की लाइनिंग्स होती हैं, आपके स्टमक का अगर एक सेल होगा वो आपके कार्डियक या हार्ट के जो मसल का सेल होगा उससे डिफरेंट होगा, लेकिन उनके कुछ जनरल फीचर्स होते हैं जो सब में सेम होंगे। तो हमने जनरल फीचर्स को आज डिस्कस करना है। लिविंग सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन classes, which is the prokaryotic cells. Greek pro means before. Those are the cells which do not have a nuclear envelope, such as the bacterial cells. मतलब हम अभी जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना तो यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर एनवेलप होगा। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, उनका डीएनए बिल्कुल ही डीएनए के तौर पे उनके सेल के अंदर पड़ा होता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। जब उस पर कवरिंग आ जाएगी ना उस न्यूक्लियर मटेरियल पे, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे, तब वो सेल यूकेरियोटिक कहलाता है। सेल्स विद न्यूक्लियर एनवेलप्स आर कॉल्ड यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूजुअली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया को जब आप देखोगे वो मल्टीपल सेल से नहीं बना होता, एक बैक्टीरिया में एक ही सेल होता है। स्मॉलर इन साइज एंड सिंपलर इन स्ट्रक्चर, हैव ओनली वन सिंगल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट्स इट। तो आप एक स्ट्रक्चर देखो, ये फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, तो उसमें आप देख रहे हो डीएनए ऐसे खुला पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, कोई इस पर कवरिंग नहीं है। लेकिन जब आप अभी यूकैरियोट का न्यूक्लियस देखोगे ना, बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर होगा। गोल क्यों है? क्योंकि उसके सराउंडिंग में एक पूरा एक न्यूक्लियर एनवेलप है जिसने उस पूरे न्यूक्लियर मटेरियल को, क्रोमोसोम को एनकेस किया हुआ है। बैक्टीरियल सेल पे अगर आप नज़र देखें ना तो डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, देयर इज़ नो कवरिंग। और उसके अलावा इसके ऊपर एक कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे एक सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स पड़े हुए हैं और एक फ्लैजेलम है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि एक सिंगल सेल के तौर पे अकर करता है, और ये एक एनिमल सेल है। इसकी डिटेल्स हम अब आगे देखेंगे। ये एक प्लांट सेल है। इसमें आप ये फ़र्क देखो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में मोस्टली ये फ़र्क होता है कि एक तो सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, दूसरी बात है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन वेल डिफाइंड सेलुलर ऑर्गेनेली सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, peroxisomes, ribosomes attached to ER. No membrane found, free ribosomes, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल। तो जो ऊपर वाले आपको बताए ना, ये सारे जो नो मेम्ब्रेन से फाउंड से ऊपर वाले जो सारे हैं, इन इंडिविजुअल ऑर्गेनेलिस के भी क्या होते हैं? मेम्ब्रेन्स होती है कि एज अ होल एक सेल की भी मेम्ब्रेन है, और फिर जब इन ऑर्गेनेलिस को देखोगे इनकी भी मेम्ब्रेन्स होंगे। जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हुई तो यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस बना और उनको यूकैरियोटिक वो कहलाए। माइटोकॉन्ड्रिया की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिस भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स नहीं होती, जैसे सेंट्रियोल्स की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। हम ऑर्गेनेलिस के मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली न्यूक्लियोलस जो कि विद इन न्यूक्लियस होता है, उसकी भी ऑब्वियसली कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। फ्री राइबोसोम्स जो कि अटैच नहीं होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उनकी भी ऑब्वियसली कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड होगी वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होगी। न्यूक्लियस, the nucleus is the largest cellular organelle in animals. In mammalian cells, the average diameter of the nucleus is approximately, important MCQ, 6 micrometers, which occupies about 10% of the total cell volume. कि 10% हिस्सा एक सेल का न्यूक्लियस में मुश्तमिल होता है। The viscous fluid within it is known as the nucleoplasm or karyoplasm. मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड होता है जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहोगे, और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। एंड इट इज़ सिमिलर इन कॉम्पोजिशन टू द साइटोसोल और द साइटोप्लाज्म फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। कॉम्पोजिशन सेम होगी न्यूक्लियोप्लाज्म की भी और साइटोप्लाज्म की भी। इट अपीयर्स एज अ डेंस रफली स्फेरिकल ऑर्गेनेली। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, डेंस होता है, स्फेरिकल होता है। Eukaryotic cells contain a nucleus. It has got two membranes. Nuclear envelope, एक पूरी एक मेम्ब्रेन होगी जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि फेस कर रही है साइटोप्लाज्म को, और एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि फेस कर रही है इनवर्ड। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आप एनिमल सेल को देखते हो ना तो न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल का, उसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ साथ। तो जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल
साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है और वो अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बहुत से न्यूमरस पोर्स होते हैं जो कि परमिट करते हैं कंट्रोल मूवमेंट पार्टिकल्स की फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कुछ ऐसे चैनल्स या पोर्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की या मटेरियल की एक्सचेंज कर होती रहती है जिनमें। तो अगर आप ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो तो उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म नज़र आ रहा है जो कि जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है न्यूक्लियोलस जो कि जिसके अंदर सारा आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। अब ऊपर देखो आप लिखा हुआ न्यूक्लियर एनवेलप जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि फेस कर रही है साइटोप्लाज्म को, और इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अटैचमेंट्स होती हैं, और इनर मेम्ब्रेन फेस कर रही है न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो 2 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप की वजह से बन रही होती हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप दोनों एक ही चीज़ के नाम है। कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स फॉर मटीरियल्स टू एंटर एंड लीव द न्यूक्लियस एंड कनेक्टेड टू द रफ ईआर, जो हमने अभी सारी बातें की न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या होती है? द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज टाइटली कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। के बड़े मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली नहीं पास आउट हो सकते हैं आपके न्यूक्लियस में से। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द न्यूक्लियस विदाउट रेगुलेशंस बट बिग मॉलिक्यूल्स कैन नॉट। मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज आरएनए एंड प्रोटीन्स फिर किस तरह आके पीछे जाएंगे? तो वो इस तरह जाते हैं दैट दे रिक्वायर एसोसिएशन कैरियोफेरेंस। कैरियोफेरेन उन प्रोटीन का नाम है जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ऐसे प्रोटीन्स जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ऐसे प्रोटीन्स को कहते हैं कैरियोफेरेंस, ठीक है। तो आरएनए और प्रोटीन्स को अगर मूव करना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, तो उनको कुछ स्पेशल कैरियोफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे कैरियोफेरेंस के नाम है इम्पोर्टेंस एंड एक्सपोर्टेंस। इम्पोर्ट करने का मतलब क्या होता है? आपने क्या चीज़ की? दर आमद की, बाहर से अंदर लेके आना, इम्पोर्ट किया। तो अगर आपको साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ अंदर चाहिए तो वो कौन सा कैरियोफेरेन हेल्प करेगा? वो होगा इम्पोर्टेंट। और जो आपने चीज़ बाहर भेजनी है तो कौन सा कैरियोफेरेन हेल्प करेगा? Exportant. So it's very easy to remember. Cargo proteins that must be translocated from the cytoplasm to the nucleus contain short amino acid sequences such as nuclear localization signals which are bound by importance. सीधी बात इसमें यही कही है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनको आपको ट्रांसलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, और जो चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगी वो क्या होगी? वो इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि वो बाहर से अंदर ला रही है। और ऐसे प्रोटीन्स के ऊपर कुछ सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का जो कि हेल्प करेगा इम्पोर्टेंट को उस प्रोटीन से बाइंड करने में, और वो सीक्वेंस क्या होता है? एक शॉर्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है जिसको न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स भी कहते हैं। इन सिग्नल्स की बदौलत प्रोटीन इम्पोर्टेंट से बाउंड होगा और फिर वो चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आएगी। Similarly, while those transported from the nucleus to outside the cytoplasm carry nucleus एक्सपोर्ट सिग्नल्स बाउंड बाय एक्सपोर्टेंट। मतलब कि थोड़ा सा एलैबोरेट की उसी बात को जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाली। Assembly and disassembly. During its lifetime, a nucleus may be broken down by process of cell division number 1 or consequence of apoptosis, a regulatory form of cell death. दो फॉर्म्स होती हैं सेल डेथ की, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस तब होगी जब साथ इन्फ्लेमेशन भी होती है। जब आप पैथोलॉजी 1 पढ़ोगे ना तब आपको बेहतर समझ आएगी कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या होता है। तो वक्ती तौर पे आप ये समझ लो कि नेक्रोसिस एक ऐसा सेल डेथ का फॉर्म है जिसमें इन्फ्लेमेशन भी साथ होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी होता है। लेकिन एपोप्टोसिस उस किस्म का सेल डेथ है जो कि कंट्रोल्ड है, प्रोग्राम्ड है, एजिंग के साथ या डैमेज्ड सेल्स के अंदर होगा कि उनकी अब आपको ज़रूरत नहीं रहती। तो एपोप्टोसिस की वजह से भी न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो सकता है विच इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस द एनवेलप एंड द लैमिना आर सिस्टमैटिकली डिग्रेडेड। स्ट्रक्चरल हायरार्की इन द मोलेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में लेवल 1 पे मोनोमेरिक यूनिट्स आते हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं और फिर सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, और फिर पूरा सेल और ऑर्गेनेली आपकी बनती है।
ये पूरा हायरार्की है आपका।